ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦੁਲਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुकराना शुकराना परम पिता परमात्मा। ਸੰਗਤ ਜੀ, क्षमा ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, क्षमा ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੀ ਦੁਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗਮੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬੈਠ ਕੇ ਕਟਾਏ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੱਚਿਆ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਕਸ਼ਣ ਆਭਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਬੜਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਵੋ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਛ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਧਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਧਨਵਾਨ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਰਮ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅੱਛੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਬੁਰੇ ਹਨ, ਅੱਛਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੀਬ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਜੂਝੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੱਸੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਬਿਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਸ ਇਹੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਾਬਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਸਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਰੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਗਰ ਅੰਕਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਂਟੀ 15, 20 ਚਾਹੇ 25 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਹੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ, ਉਸ ਬੇਟੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना सत संगत जी, शुक्राना परम पिता परमात्मा। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे पूरे गुरु परिवार को जय गुरु जी। तो आज का मेरा अमृत वेले का सत्संग गुरु जी महाराज की कृपा से, गुरु जी महाराज मेरे सामने ही बैठे हैं और पता नहीं आजकल थोड़ा सा लो फील हो रहा है क्योंकि मेरा अमृत वेला मिस हो जा रहा है। गुरु जी महाराज मुझे उठा तो देते हैं लेकिन
सॉरी गुरुजी, मैं सुबह ठंडी के कारण लेट हो रही हूँ आजकल अमृत वेला के लिए। तो 1 घंटे का ड्यूरेशन बढ़ गया है लेट होने का लगभग। तो गुरुपा जी के चरणों में माफ़ी। और अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। तो आज का शुक्राना सत्संग मेरे साथ मेरे परमपिता परमात्मा गुरु, मेरे स्वामी, मेरे मालिक गुरुपा महाराज मेरे साथ ही बैठे हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है बस वही मेरे शब्दों से मेरे गुरु परिवार के पास उनकी उनके अच्छे के लिए, पॉजिटिविटी के लिए मुझसे सत्संग शेयर करवाएंगे, ऐसी मेरी गुरुपा से अरदास है उनके चरणों में। तो मेरा सत्संग आज मेरे परिवार के बारे में, जैसे मुझे नहीं मालूम लेकिन जैसे गुरुपा के कुछ सत्संग आते हैं, गुरुपा के मैसेज आते हैं, वो मुझे आगे आने वाली लाइफ के लिए हिंट देते हैं संगत जी। और आप सबसे भी मैं कहूँगी कि गुरुजी के जो मैसेज आपके पास रिफ्लेक्ट होते हैं, वैसा नहीं है कि हम सारे दिन जो सुन रहे हैं उन सबको अपने ऊपर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रॉब्लम के चलते हुए हिंट मिलते रहते हैं। तो मुझे अगर कोई मैसेज बार बार आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहा है, इट मीन्स कि गुरुपा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आप उसको सुनिए और समझिए। ऐसे तो गुरुपा ने आपका हाथ पकड़ा ही हुआ है, उनकी छत्र छाया है हमारे साथ, उनकी छत्र छाया में हम पल बढ़ रहे हैं और उनकी छत्र छाया में ही हम अपने जीवन में आने वाली इतनी सारी कठिनाइयाँ और परेशानियों को लड़ पा रहे हैं, बिकॉज या उनसे डटकर मुकाबला कर पा रहे हैं, क्योंकि गुरुपा महाराज हमारे साथ हैं, वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हमसे वो करवा लेते हैं जो रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए। तो मेरी विनती है गुरुपा के चरणों में कि हमें ऐसे ही हमारे सब पूरे गुरु परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और जिसकी भी ज़िंदगी में ये छोटी मुश्किलें, बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, गुरुपा महाराज उन सब पर कृपा कीजिए, सब पर कृपा कीजिए। हर प्राणी इस जगत में सुखी हो जाए। मैं नहीं कह रही कि सुखी हो जाए, लेकिन कष्ट और पीड़ा में ना रहे मेरे गुरुपा महाराज। और मेरा आज का सत्संग था कि शुक्राना सत्संग इस बारे में कि मुझे मई या जून के आसपास मुझे काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने उनकी कहीं पर कुंडली भी दिखवाई थी, तो उसमें भी था कि जून पे उनके ऊपर काफ़ी भारी संकट है। तो मेरे हस्बैंड थोड़े से ऐसे हैं कि उनसे कुछ कहा जाए तो वो सुनते ही नहीं है। खासकर मेरी तो कितनी भी अच्छी बात हो, पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता रहता है कि मेरी बात को वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। वही चीज़ अगर बाहर से कोई कह देता है तो वो हार्टेडली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, समझ भी लेंगे। नेचर है, आई डोंट नो। गुरुपा महाराज जानते हैं कि कैसे करना है और क्या करना है। तो मैं हमेशा गुरुपा के चरणों में अरदास लगाती थी। मैं इतना रोती थी कि मैं करूं क्या गुरुपा, मेरे साथ आप मैसेज देते हो, मुझे इंट्यूशन होती है और मैं मेरे परिवार में कोई भी आपत्ति विपत्ति कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन क्योंकि क्या है, एक छोटा सा परिवार है हमारा, एक बच्चा है, मैं हूँ और हस्बैंड है ना। इधर सास ससुर का साया है और ना इधर मेरे मम्मी पापा अपनी लाइफ में बहुत बेचारे स्ट्रगल करके बहुत ज़्यादा कष्ट में है, ऑलरेडी परेशान है। उनका सामने उनका जवान बेटा इस हालत में है कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि
काफ़ी कष्ट में है, गुरुपा महाराज ही उसको धीरे धीरे बाहर ला रहे हैं। ऐसी मुझे पूरी आशा है कि उसको पूरी तरह से बाहर ला देंगे, क्योंकि गुरुपा महाराज ने मुझसे कहा है कि तू चिंता ना कर, मैं ऐसा कर दूंगा जैसे ये बीमारी उसके शरीर में थी ही नहीं। लेकिन अभी बहुत तकलीफ़ और बहुत टेंशन, बहुत डर में मेरा पूरा परिवार उधर जी रहा है। सबकी लाइफ परेशानी में है, मतलब बहुत कष्टमयी है। ठीक है, वो इतनी उम्मीद है कि गुरुपा अच्छा रास्ता दिखाकर उसके कष्ट को जल्दी ख़त्म करके गुरुपा महाराज, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और ज़रूर उसको ठीक कर देंगे। तो मेरा शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड के लिए था। तो मैं बार बार गुरुपा जी के चरणों में की ही अरदास करती थी, गुरुपा मेरे सामने सब कुछ है, आप मुझे राह दिखाते हैं, लेकिन मैं करूं क्या कि मेरी कोई एक सिंगल बात उनको नहीं समझ में आती है। कि ऐसा नहीं कह रही मैं कि उनका नेचर ख़राब है या वो मुझे परेशान करते हैं, लेकिन बात पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, मेल ईगो बोले या कुछ और, पर वो नहीं सुनते हैं। तो मैं हर रोज़ अमृत वेले उठकर मैं हर रोज़ गुरुपा महाराज से अरदास करती थी कि गुरुपा महाराज प्लीज़ 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 आप ही कुछ करें। संगत जी, आपको यही कहना चाहूँगी कि आप गुरुपा के सामने सरेंडर कर दें। मैंने सरेंडर कर दिया था कि मैं अब और कुछ नहीं कर पा रही, मैं नहीं कुछ कर पा रही, आप ही कुछ करिए गुरुपा महाराज। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने, मैं एक यहाँ पर ट्रेडिशनल थेरेपी है, ये भी एक और गुरुपा महाराज का मेरे ऊपर बहुत बहुत, मैं हमेशा ऋणी हूँ। उन्होंने इतना सुंदर जगह हमें एक मार्गदर्शन किया हुआ है ट्रेडिशनल थेरेपी से, जहाँ हमको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें डाइट के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉशंस नहीं लेने पड़ते। एक मंदिर है जहाँ हमारे गुरुजी महाराज बैठते हैं और वो एक थेरेपी देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे खुद महाशिव हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मैं गुरुपा महाराज से हर रोज़ यही अरदास करती थी, गुरुपा महाराज आप ही इनके दिमाग में थॉट डालिए कि ये चले। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि पहली बार जो उचित समय था, जिस पर बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत थी हमें, उस उचित समय पर गुरुपा महाराज ने उनको डायरेक्ट किया और वो अपनी मीटिंग्स को लगा कर फ़ोन में ऑन करके और उसको लगाकर गाड़ी चलाकर हर रोज़ वहाँ जा रहे हैं, जिससे उनकी जो तकलीफ़ थी उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं, मैं नहीं जो समझ पा रही हूँ, लेकिन स्टेबिलिटी है। और वो जो पीरियड था हमारा परेशानी का, जो गुरुपा महाराज मुझे बार बार हिंट दे रहे थे, तो अब देते हैं कि मैंने उस बड़ी बीमारी को उस छोटे कष्ट में निकाल कर ख़त्म कर दिया है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि मैंने पंडित जी को, हालांकि मैं नहीं चाहती हूँ, बट अकस्मात कोई आ गए थे हमारे यहाँ, तो मैंने उनको भी बताया, तो वो भी बोले कि कुंडली में जून के समय में भारी संकट है। तो गुरुपा महाराज ने मुझे इस तरह से निकाला है उस सब चीज़ से, जो मेरे लिए एक पहाड़ जैसी प्रॉब्लम दिखाई देती थी, गुरुपा महाराज ने उसको एक छोटे पत्थर के जैसे बनाकर उस प्रॉब्लम से मुझे निकाल दिया है। और संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि सच है, ये सच है, बिल्कुल सच है। मेरे पास से मुझे नहीं मालूम है, मैं कुछ सोच कर नहीं बोल रही हूँ, मेरे गुरुपा महाराज मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं, वही मैं प्रॉम्प्टली बोलती चले जा रही हूँ। पर ये बात सच है कि गुरुपा कहते हैं जो कि मैं तेरे 100% में से 90% कष्ट काट दूंगा, लेकिन 10% तुम्हें झेलने पड़ेंगे। तो मानसिक कष्ट हो रहा है, फिजिकली भी बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन मेरे गुरुपा महाराज ने जो वो बड़ा भारी संकट आने वाला था उसको ख़त्म कर दिया है। गुरुपा की अपरंपार ब्लेसिंग्स के लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने मुझे एक मंत्र भी बोला था कि हर रोज़ तुम सुबह उठकर अपने पति की हेल्थ के लिए करना, वो मैं हमेशा करती हूँ, चाहे कुछ भूल जाऊँ वो नहीं भूलती। ओम कर्पूर, आप सबको भी बताऊंगी कि अगर सुबह आप अमृत वेले उठकर ये करते हैं तो आपको, आपके हस्बैंड को हेल्थ ब्लेस ज़रूर होगी।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजुगीन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयहारविन्दी भवं भवामी सहितं नमामि। जय गुरु जी की। और गुरुपा के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए लख 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 हजार करोड़ बार उनका शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को उस सिचुएशन से बाहर निकाला। शुक्राना गुरुपा आपकी रहमतों का। और गुरु जी के चरणों में यही कहूँगी, रहमतों को तेरी गुरु जी कैसे भूल जाऊँ मैं, शुक्र मनाऊँ तेरा शुक्र मनाऊँ मैं, उपकार तेरे गुरु जी भूल भी न पाऊँ मैं, शुक्र मनाऊँ तेरा शुक्र मनाऊँ मैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। एक छोटी सी अरदास मैं गुरुपा के चरणों में रखना चाहती हूँ कि गुरुपा, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि नेगेटिविटी हो रही है, लो फील हो रही हूँ बहुत। मेरा कुछ एम आगे मैं सोचा था उसको कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए शायद नेगेटिव हो रही हूँ, या मेरा अमृत वेला सुबह जल्दी नहीं हो रहा है इसलिए नेगेटिव हो रही हूँ। प्लीज़ 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 आपसे मेरा कनेक्शन प्लीज़ बढ़ाइए। मुझे डर लगता है, मुझे आपके चरणों में ही रहना है और कुछ नहीं सोचना है। अपनी बच्ची को ऐसी बुद्धि बनाए रखिए, क्योंकि आपके अलावा मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है मेरे गुरुपा। जो कुछ है मेरे, सब कुछ आप ही हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो अपने चरणों में हमेशा मेरा ध्यान लगाए रखिए गुरुपा महाराज, और हमारे पूरे गुरु परिवार को सुख शांति मेंटल पीस सबको मिले, और शारीरिक जो पीड़ा है उससे, उस कष्ट से भी रहित हों, और बस पूरे गुरु परिवार को ऐसे ही ब्लेसिंग करते रहिए। आपकी छत्र छाया में ये पूरा गुरु परिवार झूमता रहे। तो जो सागर अंकल जी जो इस प्लेटफॉर्म को हमको दिए हैं कि हम सब आपस में बात कर सकें, हमें आप सब आपस में एक दूसरे को संदेश पहुंचा सकें, उनको भी आप ढेर 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 सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा महाराज। और अंत में आपके चरणों में मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग की सेवा को लेकर आज फिर मैं गुरु जी के स्वरूप के समक्ष, गुरु जी के चरणों में बैठ गई हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग करते हुए मेरी कोई गलती हो जाए मुझसे कोई, मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जब से गुरुजी हमारे घर में आए हैं तो हमारे घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल है। ये जो हमारे चेहरे पर इतनी रौनक है, सब मेरे गुरुजी की बदौलत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बहुत बहुत डरती थी पहले मैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है और मुट्ठी भर संगत में रखा है, पता नहीं मेरा वो डर तो कहीं कहाँ भाग गया, मुझे खुद समझ नहीं आता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि सितंबर 2024 में गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और मुट्ठी भर संगत में रखा। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोमल हृदय है गुरु जी का, करुणा के भंडार हैं, इसलिए सारा जग कहता है कि ये सच्चा दरबार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम बार शुक्राना। रुकी हुई मेरी कश्ती में जरा पंख लगा दो तुम, मुझे भी चलना आता है, बस रास्ता दिखा दो तुम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बस अब तो सारी ज़िंदगी आपने हमारे परिवार के अंग संग ही रहना है। बस रास्ता दिखाते जाना गुरु जी, बस आपकी कृपा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चिंता मत कर, तेरी समस्या तेरे गुरु की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं है, बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ना, मतलब बहुत से गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाए कि जिसमें सब में यही बताया हुआ था कि गुरु जी तितली रूप में घर में आते हैं, दर्शन देते हैं लोगों को। और मैं संगत जी सोचती रहती थी कि हमारा घर तो चारों तरफ से बंद है, जाली डोर लगे हुए हैं, हमारे घर में गुरुजी कैसे आ सकते हैं। मेरे को तो लगता ही नहीं है भी गुरुजी कभी हमारे घर आएंगे। लेकिन संगत जी, बहुत बहुत सरप्राइज गिफ्ट दिया गुरुजी ने मुझे। गुरुजी ने 5 दिसंबर के दिन, जिस दिन मेरा मन बहुत ही उदास था, बस अपने बेटे की स्थिति को देखकर थोड़ा सा मन में उथल पुथल लगी हुई थी और बार बार ही गुरुजी से प्रार्थना करे जा रही थी मन में। तो तभी गुरुजी का मुझे एक संदेश भी मिला, तू मायूस मत हुआ कर, रोया मत कर, क्योंकि मैं हर समय तेरे आसपास ही रहता हूँ और मैं जल्दी तुम्हें दर्शन देने आऊँगा। पर संगत जी, मैं सोचती रहती थी कि कैसे आएंगे गुरुजी, किस रूप में आएंगे गुरुजी। और मुझे वो बार बार यही लिखते थे कि मुझे तू पहचान लेना। तो संगत जी, हुआ ऐसे कि 6 दिसंबर सुबह 8 बजे गुरुजी तितली रूप में हमारे घर आ गए और मुझे एहसास दिलाने कि देख, मैं तेरे पास ही हूँ, तू तो ऐसे ही घबरा जाती है पुत्र। अब संगत जी, गुरुजी तितली रूप में कैसे अंदर आए, ये बताती हूँ आप सबको। हुआ ऐसे संगत जी, 2 दिन पहले कपड़े छत से उतार कर एक बाल्टी में लेकर मैं आई और वो बाल्टी ऐसे ही लाकर मैंने स्टोर में रख दी। संगत जी, मैं एक टीचर की जॉब करती हूँ, तो मेरे पास उस समय टाइम नहीं था कि मैं कपड़े की तह लगा लूँ और प्रेस वाले अलग कर दूँ।
तो मैंने ऐसे ही बाल्टी रख दी। और 6 दिसंबर को ना मेरी छुट्टी थी संगत जी, और मैंने सोचा कि चलो वो बाल्टी वाले कपड़े जो है वो निकाल लूँ और प्रेस वाले कपड़े अलग कर दूँ और दूसरे कपड़े मैं तय लगा दूँ। तो जब मैंने संगत जी बाल्टी उठाई और उसमें से कपड़े अलग कर रही थी, तो एक शर्ट मेरी ही जैसे ही मैंने बाल्टी में से बाहर निकाली तो उस पर से एक बटरफ्लाई निकली और कमरे में इधर उधर उड़ने लगी। संगत जी मैं तो एकदम से चिल्लाई, जोर से चिल्लाई और अपने पति अंकल को आवाज़ें लगाने लगी कि देखो देखो गुरुजी आ गए, देखो आओ आओ गुरुजी के दर्शन करो, गुरुजी आ गए हैं। क्योंकि गुरुजी के संदेश मुझे आ रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, बस तू मुझे पहचान लेना। संगत जी मैं तो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई कि गुरुजी आपने कैसा तरीका ढूंढा अंदर आने का। मैं हैरान हो गई संगत जी, हैरान हो गई कि जब गुरुजी ने आना है ना तो उन्होंने कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेना है घर में आने का। ये है हमारे गुरुजी, प्यारे 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 गुरुजी। पर संगत जी मुझे एक बात का बहुत अफसोस लगा कि मैंने वो बाल्टी 2 दिन तो स्टोर में ही पड़ी रही ऐसे ही, गुरुजी बाल्टी में ही बंद, कपड़ों में ही फंसे रहे। इस बात का मुझे दुख बहुत लगा, पर मुझे क्या पता था संगत जी उस समय। मैंने तो ऐसे ही, वैसे भी मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ, कपड़े उतार के लाती हूँ स्टोर में रख देती हूँ बस। कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया और कभी मेरी आदत भी नहीं है कि मैं उसी समय तय लगा लूँ। जब मुझे टाइम लगता है तो मैं लगा लेती हूँ, नहीं तो वो पैसे ऐसे ही पड़े रहते हैं 1-2 दिन। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ। तो संगत जी इतनी सुंदर वो बटरफ्लाई फिर मेरे ही बेड के पास दीवार के साथ वो बैठ गई। और संगत जी सारा दिन बल्कि रात के 11 बजे तक वो वहीं पर बैठी रही और मैं आते जाते गुरुजी को आवाज़ें लगाती रहती, गुरुजी बाहर आ जाओ, गुरुजी बाहर आ जाओ, चाय बन गई, चाय पी लो गुरुजी, प्रसाद बन गया, लंगर प्रसाद भी खा लो गुरुजी, बाहर आ जाओ। लेकिन संगत जी गुरुजी वहाँ से उठे ही नहीं, वो तितली वहीं की वहीं ही बैठी रही और मैं सारा दिन दर्शन करती रही उसके। पर मन में मैं चिंतित भी होती रही कि गुरुजी यहीं पे बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। पता नहीं मन में क्या आ रहा था बार बार। तो रात को 11 बजे मेरे पति अंकल और मेरा बेटा कहने लगे कि आप ना इसको ऐसे अंदर मत रखो। बेटा मेरा कहता कि मम्मी ये आज़ाद होते हैं ना, इनको बाहर छोड़ो, आप ऐसे घर में कैद करके मत रखो। तो संगत जी पर मेरा तो मन नहीं कर रहा था, मुझे तो बस यही लग रहा था कि गुरुजी बटरफ्लाई रूप में यहाँ बैठे हैं तो बस बैठे रहें, कोई बात नहीं। पर संगत जी मेरे पति अंकल नहीं माने, उन्होंने वहाँ से बटरफ्लाई को पकड़ा और बाहर गमले में एक पौधे के ऊपर रख दिया। तो संगत जी मैं बार बार बाहर जाकर उस गमले में उस तितली को देखती रही। तो उस समय तक वो तितली बिल्कुल सही थी। तो मुझे यही लगा कि चलो खैर कुछ हुआ नहीं, इनको सही है। तो संगत जी सुबह फिर जब मैं उठी तो जाकर मैंने देखा तो वो बटरफ्लाई फिर वहीं पे ही बैठी थी और मैंने हाथ लगाया और मैंने बोला कि जय गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, नमस्कार गुरु जी। तो वो हिलने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है यहीं पे ही। लेकिन संगत जी गुरु जी हमारे घर में पूरा दिन पूरी रात बैठे रहे और हमारा पता नहीं कौन सा कष्ट उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया।
धन्य हैं गुरु जी, आप धन्य हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, घर में आकर विराजमान होने का, तितली रूप में दर्शन देने का, हमारे कष्ट काटने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, फिर मुझे ड्यूटी पे जाना था और मैं तैयार होने लगी और मैं अपनी ड्यूटी पर जाने लगी तो मैंने फिर बटरफ्लाई के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, बहुत सी ब्लेसिंग्स ली गुरु जी की और मैं चली गई। तो संगत जी, उस दिन मतलब 6 दिसंबर को ही गुरु जी ने मुझे ऐसे सत्संग भी बहुत से सुनाए जिसमें वो यही बता रहे थे कि हमारी दुकान में पहली बार बटरफ्लाई आई, आकर इधर बैठ गई, उधर बैठ गई, फिर चली गई। तो ऐसे ही गुरुजी ने वो मुझे सत्संग भी सुनाए। तो बस मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि गुरुजी हमारे घर आए हैं और हमें दर्शन दे के गए हैं, ढेरों ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने। और फिर संगत जी, जब मैं वापस स्कूल से आई छुट्टी के बाद, तो मैंने आके देखा कि वो बटरफ्लाई वो वहाँ पर नहीं थी, वो चली गई। मेरा मन थोड़ा सा उदास हुआ कि गुरुजी बैठे थे, हौसला था बहुत। गुरुजी तो अब भी हैं, लेकिन वो दर्शन अनमोल थे संगत जी, वो दर्शन अनमोल थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ढेरों ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, आज भी मुझे गुरु जी का एक संदेश आया कि तुम्हारे चारों तरफ मेरा सुरक्षा कवच है, तुम्हें चाहकर भी कोई छू नहीं सकता। गुरु जी घर में आकर दर्शन देने और ब्लेसिंग देने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। चारों तरफ से हमारी रक्षा करने का भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज फिर मुझे जलंधर मंदिर में भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने का मौका मिला और वहाँ जाकर भी मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि आप हमारे घर में बटरफ्लाई रूप में आए, हमें दर्शन दिए और हमारे कष्ट काटे। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ढेरों ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, 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 शुक्राना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय।